Hello everybody, and we'll start. Today onwards we'll start the modern physics, and in modern physics some of the sections we have already done, but we'll be revisiting with questions and some more concepts. Like we have done the Planck's quantum theory of light, we have done the photoelectric effect, we have done the atomic structure. So these topics we have to again revisit, and again one nuclear physics that we have to do. Okay. So now we'll start today the quantum theory of light. In short, Planck's theory. Okay. So please give the heading. And already we have done, so it won't create any problem. So quantum theory of light. So that is, give the heading quantum theory of light. Okay. तो यहाँ पे exactly, so यहाँ से अपना आया था, द प्लैंक्स ने दिया था 1900 में, दैट लाइट इज अ, जाके एक बार देखना एटॉमिक स्ट्रक्चर में उन्होंने किया था 11th स्टैंडर्ड में, द लाइट is a collection of small energy bundles and called quanta or photon, and energy and each quanta and photon is traveling with the speed of light. तो लिखा हुआ तुम्हारे नोट्स में, और पॉज करके तुम लिख सकते हो. And speed of light 3 × 10⁸. Okay, the energy associated with each quanta and photon is directly proportional to the frequency of that light. Okay. So energy associated with each quanta and photon is directly proportional to the its frequency. So that is one equation, that each photon. So that is energy associated, that is E is equal to h nu or hc by lambda. This is there, and here this is energy associated with each quanta and photon. And the energy given by the photon is always quantized. Means energy, the quantization theory follows that photon will always give energy either 1 h nu, 2 h nu, 3 h nu. The fraction of energy cannot be transferred by the photon. Okay. Now next was the frequency of these photons. If these photons travel from one medium to second medium, frequency does not change, it remains constant. What changes? Velocity of light, velocity of photon, and the wavelength associated with photon changes. Okay. The next was if with a suitable condition the photon can be diffracted, that we have seen in the wave theory of light. Okay. And the last was the intensity of photon, meaning what? Intensity of photon meaning the number of photon hitting, and that is very important. I think this we have not done there. So ये लिख लेना कि intensity of photon meaning the number of photon hitting the surface per second. Okay. So that is, so intensity of photon means number of photons. Okay, in simple words. Okay. So here just see, so here if I simplify this value E, this comes 12400 electron volt by lambda in angstrom. So this is there. Okay, तो ये एक शॉर्टकट तुमको याद करने के लिए अच्छा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, 1240. क्वेश्चंस इस पे डायरेक्ट होंगे, वो क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना. तो डायरेक्ट तुमको लैम्डा दिया होगा, फिर ये फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तुमको फाइंड करना होगा द एनर्जी एस. तो ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन में एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया होगा. इसमें क्या करना है, फिर इसमें अपने को द फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटोन ये करना है. व्हाई? बिकॉज ईच फोटोन बाय द de Broglie hypothesis, each photon having, because mass again, हाँ एक चीज और था कि the rest mass of photon is
imaginary, मतलब it is not there. The mass associated with photon is always there when it is moving. तो rest mass of photon is 0. Okay, ये भी हम लोगों ने किया था. तो यहाँ से अपने को आता है, if you just see the this E is equal to mc square by the by the Einstein theory. So from here if you just see, this is mc is basically nothing, यहाँ से लिखा मैंने, तो momentum associated with each photon, again momentum of each photon is h by lambda. Just see, this is another equation, and this we have seen by the de Broglie wave particle duality also. If mass m is moving with certain velocity, the momentum associated with h by mv. Okay, here the momentum is h by lambda, the same, when the mass of m is moving with velocity v, the wavelength associated with that particle is h by mv. Okay, so here mv is the momentum, so here the mc, mass times velocity, is the momentum associated with the photon. Okay, so this is there. Now number of photon, let's say if there is a light source, and if that light source is emitting, let's say the power of that light source is capital P. Power means energy emitted per second, means joule per second. So what is number of, so please write a question in terms of I'll be taking theory in terms of question itself. So please write a light source of power capital P emitting light. So find the number of photon emitted per second. Find the number of photon emitted per second. तो again तुम pause करके solve करो, मैं continue करता हूँ. So here the first question, the light source power P means energy per second, and energy associated with each photon. So energy associated with each photon क्या हो जाएगा, that is hc by lambda. So with each photon is this, and per second this much energy is getting emitted. So number of photon emitted per second क्या हो जाएगा, it is number of photon emitted per second is that is P by hc by lambda. So that is P lambda by hc. This is your number of photons emitted per second. ठीक है, energy क्या हो गया, so for this much energy how many photons are required, this many, and per second इतना. तो just see, ये simple I think समझ रहे हैं सब, unitary method है. So P lambda by hc is the number of photons emitted per second. Okay, now here the momentum, or let's say the next part is एक क्वेश्चन है, so that is calculate the number of photons emitted in 10 hours. Calculate the number of photons emitted in 10 hours by 60 watt sodium lamp. By 60 watt sodium lamp, lambda is given 5893 angstrom. Lambda is 5893 angstrom. Okay, so try this. Answer is 6.4 into 10 raised to 24. Okay. Next is intensity of the light source. Next comes
intensity of the light source. Okay, what is intensity? Already we have discussed this in the wave, that is energy emitted per second per unit cross sectional area, and energy emitted per second is called power. So basically power emitted per unit cross sectional area. करें यहाँ पे ये important है, per unit cross sectional area. Per unit cross sectional area means what? कि it is the area perpendicular to the direction of motion, the direction of propagation of light. That is very important. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लाइट के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया. इफ लाइट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, सो प्लीज राइट दिस एनर्जी intensity of the light source, so energy emitted per second per unit cross sectional area, or energy or power intensity is defined as power per unit cross sectional area. Okay, so you have to always define what is the cross sectional area. Let's say if I take, already we have done it, so we are doing the second is intensity. That is, if a point source is there, point source of power P is there, so what is the intensity when the light source is reaching? So again सबको याद होगा, when light source is reaching here, so यहाँ पे the intensity will be how much? So intensity is P by cross sectional area. Point source है तो cross sectional area will be spherical area. So for a point source intensity is P by 4 pi r square. So as you move away from the P, the power or the point source of power P, the intensity is going to decrease like this. Okay, again whole of the energy emitted by this point source is going to reach in a time t, it is going to reach on this surface, and I hope so it is called wave front, जहाँ पे all the particles are in same phase, that is called wave front. Wave optics में यही किया हम लोगों ने. If light source is traveling like this, if light source is traveling in a straight line path, okay, power P है, तो straight line path है, then cross sectional area will be this one. So this is your cross sectional area. So here intensity will be P by A. So you have to decide cross section area is always direction of propagation of light के perpendicular. That is very important. Already हम लोगों ने ये wave में किया, इसलिए यहाँ पे समझ रहा हूँ सबको. अगर मान लो surface ऐसा है, light is falling like this. Light is falling like this. Means it is making angle theta with the vertical. तो उस केस में क्या होगा? So here the direction of propagation of light के perpendicular. So देखो this, for this surface area vector is like this. तो इसके हम लोग perpendicular लेंगे. This one. तो this is a cos theta. तो you area vector is a, again area is a vector quantity. So take the component of area along the, if it is not perpendicular. Okay. So इसके क्रॉस सेक्शन ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द दिस लाइट. तो ए कॉस थीटा विल बी लाइक दिस, ए कॉस थीटा. ओके, अगर ये लाइट वर्टिकली आता तो ठीक था, बिकॉज हम लोग कंपोनेंट किसका लेते हैं? वेक्टर का लेते हैं. एरिया इज अ वेक्टर, इंटेंसिटी और पावर इज नॉट अ वेक्टर. सो यहाँ पे दिस इज देयर, तो पावर मान लो P है, तो इंटेंसिटी विल बी P बाई ए cos theta. That is important. So always area you have to take the component of area perpendicular to the direction of propagation of light. और यहीं पे कुछ questions में जहाँ पे we get confused here. We'll take a question then we'll come to know. Okay, so just देखो ये, it will be easy. यहाँ पे देखो, यहाँ पे propagation of light and area. So in simple words, if you just see, if you want to say कि direction of propagation of light and area vector must be parallel, then that area is called cross sectional area.
यहाँ पे एरिया ऐसे था, डायरेक्शन ऐसे है, तो इट इज नॉट पैरेलल, सो वी हैव टेकन अ कंपोनेंट टू मेक द पैरेलल. ओके, so this is there. Next is, and that is main. यहाँ पे point source है, तो point source is going to travel in a spherical wave front. So यहाँ पे light ऐसे इस surface के light perpendicular है. Okay. So here the, so just see this is there. तो ये ध्यान में रखना है, उससे क्वेश्चन लेंगे फिर समझेगा. नेक्स्ट इज force exerted by the photon, that is force exerted by light beam on a surface, and इसी पे बहुत सारे questions होंगे. तो force exerted by light beam on a surface, जैसे भी कोई भी light, अगर if you keep a surface in the path of light, that light applies a force, so that force we have to calculate. Again, फोर्स क्यों एक्ट होगा, सो दैट विल सी एंड लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो अपने पास फॉर्मूले हैं वो हम लोग लिख लेते हैं. तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, दैट इज पी एच सी बाई लैम्डा. पी इज द पावर. ओके, मोमेंटम इज momentum small p is h by lambda. तो देखो, तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए अभी. नाउ फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम on a surface. मान लो a light beam is traveling and a surface come in its path. तो light beam consists of the photon. Photon is a energy packet, energy bundles, energy particle. So if that particle is going to strike the surface of surface on which it is going to fall, so and each photon is having a momentum, so there will be change in momentum. अगर absorb भी हो गया, it can be three cases. Either it will be fully absorbed, or it will be reflected, or it will be some part reflected, some part absorbed. Okay, so here, so first of all, if we see here, let's say, so first case I'll take, when case 1 देखो, if surface is perfectly reflecting. So let's say first case, if surface is a black body. Surface is a black body. Black body है मतलब क्या हो गया कि the surface is going to absorb the light. तो just see, यहाँ पे surface है, okay, surface is, and light is falling on it. Okay, light is falling on it. मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं, इसका मैं अगर ये देखूं, अगर तुम इसको थोड़ा सा और ये देखो, तो क्या हो रहा है, the energy bundles are going to fall on this. हर एक एनर्जी बंडल, हर एक फोटोन का ये कितना है, मोमेंटम h बाई लैम्डा. तो हिट के पहले, हिट करने के जस्ट पहले मोमेंटम एसोसिएटेड विद द फोटोन इज h बाई लैम्डा. हिट कर एब्जॉर्ब होते ही दैट लूजेज इट्स वेलोसिटी, दैट लूजेज इट्स मोमेंटम, एंड एब्जॉर्ब होते ही मोमेंटम बिकम्स जीरो. सो देयर इज चेंज इन मोमेंटम फॉर ईच फोटोन, एंड चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स. चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स. तो वही हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं. तो केस 1 एब्जॉर्प्शन, ए इज इक्वल टू 1, फुल्ली एब्जॉर्प्शन. तो हियर लिखता हूँ, देखो, फॉर सो जस्ट राइटिंग चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन. क्या होगा, फाइनल मोमेंटम जीरो, इनिशियल इज, ये जा रहा है ऐसे, इट इज गोइंग लाइक दिस, सो माइनस h by lambda, so that is h by lambda is the change in momentum of one photon. What is change in momentum? Then for change in momentum per second, so let's say power p is there, p is the power of the light which is falling on the surface, so number of photon
per second heating the surface, क्या आ जाएगा? That is power P lambda by hc. So change in momentum of all photons per second. तो change in momentum of all photons per second. एक सेकेंड में जितने भी फोटोन फॉल हो रहे हैं उस सरफेस, उसके लिए चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? तो एक मोमेंटम का चेंज h बाई लैम्डा है, और पर सेकेंड कितने फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं इतना, तो p लैम्डा बाई hc. सो जस्ट सी that is p power by c is the change in momentum of all photon per second which is falling on the surface. Absorb हो गया तो final momentum is zero, and इसी को हम लोग force बोलते हैं. So change in momentum, force is what? Force is delta p by delta t. So this is p by c. So this is the force. P is the power of the source and the c is the velocity of the light. It is called force exerted on, again ये change in momentum कि किसके लिए हुआ? Change in momentum of the photon. तो by third law so this is the force on the photon. So I just write this is the force on photon. So by third law, by Newton's third law, force on body due to photon क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p by c. फोटोन पे अगर फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा ऑन द बॉडी. देखो तो ये समझते तो आगे का आसान हो जाएगा. ठीक है. नाउ द केस 2 अगेन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो पावर ठीक है. यहाँ पे नाउ केस 2, यहाँ पे देखना द एरिया वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट हैविंग जीरो एंगल इज जीरो बिटवीन देम. तो उसके लिए केस हम लोग ले रहे हैं. एंगल चेंज होगा तब क्या करें, उस पर भी आते हैं हम लोग. तो पहले हम लोग ये केस सिंपल केस कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस हैविंग जीरो एंगल और 180 एंगल, जो भी लेना है. नाउ केस 2 एब्जॉर्प्शन जीरो, रिफ्लेक्शन इज 1, मींस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिक लेते हैं हम लोग, बिकॉज फोटोन आइदर एनर्जी ट्रांसफर करेगा या उतना ही एनर्जी लेके वापस आएगा, वो कुछ फ्रैक्शन ट्रांसफर नहीं कर सकता. इसीलिए whenever light is getting reflected from any surface, so that reflection is always elastic, perfectly elastic. इलास्टिक है तो जिस मोमेंटम से गया उसी मोमेंटम से वापस आएगा. क्यों? बिकॉज मास ऑफ फोटोन is very small as compared to the surface, the wall or the reflecting surface. The mass of photon is very small. So जिस velocity से जाएगा उसी से वापस आएगा. तो यहाँ पे मान लो मैं एक फोटोन में ले रहा हूँ, तो जिससे ये हिट किया उसी से ये वापस आएगा. That is h by lambda. तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? फाइनल h by lambda माइनस ऑफ माइनस h by lambda. बिकॉज मोमेंटम का डायरेक्शन भी अपने को लेना होगा. आई हैव टेकन दिस डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हिट के पहले जा रहा है ऐसे, तो माइनस. तो दिस इज, तो दैट बिकम्स 2h by lambda. एंड हाउ मेनी फोटॉन्स आर हिटिंग पर सेकेंड? सेम वे, सेम. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2h by lambda. तो यहाँ पे 2p by c, मैं उसी में लिख रहा हूँ, तुम अलग से लिखो 2p by c. So force, so this is the force on the photon. So by third law, force on the body due to this is 2p by c. देखो this is due to reflection. Okay. If some part is absorbed, some part is reflected. Now case third case में ले रहा हूँ. तो देखो ये आसान है. If you just move properly, number of photons per second, momentum इसी पे based है. तो force per unit per second is p by c. Now
if A is not 0, R is not 0. So A plus R is always 1. Means कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ फ्रैक्शन उसका एब्जॉर्ब होगा. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन ड्यू टू रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्यू टू रिफ्लेक्शन. क्या हो जाएगा? ये एक फोटोन का है, लेकिन एक में से आर फ्रैक्शन ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दिस इनटू आर हो जाएगा. देखो तो ये अगर एक फोटोन होता 2h by lambda इज द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्शन, लेकिन आउट ऑफ वन द आर फ्रैक्शन इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, तो दिस इनटू आर आ जाएगा. हाउ मच इज अगेन चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन. तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? तो दैट इज 0 माइनस h by lambda. तो ये कब होता है? जब एक फोटोन. तो अभी चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो अभी क्या था? अभी यहाँ पे a फ्रैक्शन हो रहा है एब्जॉर्ब, so this into a. So means तुमको क्या हो गया? This is a h by lambda. So total change in momentum of all, so number of photons, ये तो इतना ही रहेगा, but heating change in momentum. So total यहाँ पे लिखता हूँ मैं, total change in momentum of all photon per second. तो यहाँ पे देखो, इसको मैं करता हूँ. तो out of this 2h by lambda r due to reflection, this is ah by lambda is due to absorption, and this is p lambda by hc. So that is 2r plus a into p by c. देखो ये, so force क्या हो गया? तो force is 2r plus a p by c. तो force by third law on the body 2r plus a p by c. तो ये फोर्स हो गया ऑन द बॉडी. देखो तो क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आसान है कि जितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होगा उसका 2 टाइम्स का जो एब्जॉर्ब होगा उसका जस्ट उतना ही रहेगा फ्रैक्शन. क्वेश्चन इज अ सोर्स ऑफ लाइट of power capital P. अगेन मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन. अगेन ये क्वेश्चन BM शर्मा का है, तो मैंने उसी से लिया है. ठीक है, देखो, तो दिस इज द क्वेश्चन. दिख रहा है सबको? तो ये सॉल्व करो. आंसर इज 1.7 P by C. ठीक है. नेक्स्ट इज रेडिएशन प्रेशर और फोर्स. तो भाई हम लोगों ने फोर्स तो निकाल लिया. अगेन रेडिएशन फोर्स तो आ गया. अगेन इसी को हम लोग बोलेंगे रेडिएशन फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट, द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन अ सरफेस, इट इज कॉल्ड रेडिएशन फोर्स. तो इसको लिख लेना, इट इज कॉल्ड रेडिएशन फोर्स. नाउ रेडिएशन प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? रेडिएशन प्रेशर मीन्स फोर्स, रेडिएशन फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रेडिएशन प्रेशर. तो यहाँ पे वही सब कुछ वही रहेगा, तो लिख लो ऐसे. तो रेडिएशन प्रेशर. ओके, तो यहाँ भी तो रेडिएशन फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर. फिर से हम 3 केस लो वैसे ही. ठीक है, उसी में हम लोग कर सकते थे, मैं भूल गया. तो फर्स्ट केस व्हेन फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, तो मैं जस्ट डायरेक्टली लिखता हूँ केस 1 में व्हेन A इज
1। तो उस केस में फोर्स क्या आया था, P by C। सो द प्रेशर is force per unit cross section area, तो P by A into C and P by A is called intensity, I by C। ये बताओ, दिस इज I by C। वही सेम केस 2 यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड द एरिया दे आर पैरेलल। केस 2 R is 1 fully reflecting surface, तो फोर्स कितना आया था, फोर्स ऑन द बॉडी इज 2P by C। तो प्रेशर इज 2P by C into area, और that is 2 power by area is intensity, 2I by C। If some part is reflected, some part is transmitted, the case 3, तो A plus R is 1, तो उस केस में फोर्स आया था 2R plus A P by C, so the pressure is I 2R plus A by C। देखो ये क्वेश्चन है अगेन BM शर्मा का ही क्वेश्चन है, मैंने उसी से लिया है क्योंकि और यहीं पे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है, ये सबको सॉल्व करना है, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, पॉज करके लिखो। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। जिनके पास बुक नहीं होगा वो अपने दोस्त को बोलना, वो बता देंगे, ठीक है। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे, यहाँ से देखो, दिस विल बी R, A विल बी 1 माइनस R, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो I 1 प्लस R बाई C। देखो A का वैल्यू का 1 माइनस R, 1 प्लस R बाई C, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन ये, तो ये सबको करना है। Let's see, this is the last question. Okay, now if light is not falling perpendicular, अभी तक क्या था, हमने केस लिया कि light is falling perpendicularly. Now let's say if I take a case कि light is not falling perpendicularly, फिर क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो light is not falling perpendicularly, then what will happen? So now let's see. एंड उसमें प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। सो आई टेक फ्रॉम अ क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन ऐसा है, देखो अगेन वही उसी का मैं क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ये ठीक है। SCV में भी है वो क्वेश्चन। सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम on a surface if light is incident on the surface at angle theta as shown. Consider all cases of absorption and reflection. इसमें इंटेंसिटी वहाँ लिखा नहीं है, बट इंटेंसिटी द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गिवन I, तो यहाँ पे इंटेंसिटी दिया हुआ है। इंटेंसिटी हो पावर हो दोनों सेम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट केस आई टेक, फर्स्ट केस इज एब्जॉर्प्शन का मैं लेता हूँ। फर्स्ट केस 1, तो लेट्स से पहले तो मैं फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट विल बी ग्रेट। सो दिस इज द सरफेस जिस पे लाइट फॉल हो रहा है। लाइट इज फॉलिंग एट सर्टेन एंगल एंड इसका इंटेंसिटी दिया हुआ है I, पावर भी हो सकता है, and this is making angle theta with the, means now the propagation of light and the area is not making, they are not parallel, they are making angle, okay। तो इस केस में फर्स्ट केस, तो केस 1 A is equal to 1 means ये पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
फोर्स निकालना है अपने को। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो यही अगर लाइट परपेंडिकुलर होता तो फोर्स क्या होता, फुल्ली एब्जॉर्ब है तो फोर्स वुड हैव बीन P by C। P इज द पावर बाई C, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, तो पावर मीन्स इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज पावर बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज देयर। तो यहाँ से देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी देखो यहाँ पे हम लोग को एरिया ये ऐसे है, इसका मुझे कंपोनेंट लेना होगा दिस वे। एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ दिस तो एरिया वेक्टर इज लाइक दिस इज एरिया वेक्टर। इसका मुझे कंपोनेंट लेना होगा बिकॉज देन ओनली दैट विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दिस इज A cos थीटा, ये जो दिख रहा है। तो यहाँ से पावर तुमको आ जाएगा P, so P by A cos theta. So that is very first part that you have to do, because here the intensity, the light is not falling, so power is I A cos theta, that is power. तो पावर ऐसे फॉल हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। तो अभी मैं वो सब लिख नहीं रहा, चेंज इन मोमेंटम वो सबको समझा होगा, बिकॉज अभी देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट और एरिया दे आर पैरेलल, सो नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट, सो फोर्स ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ऑलरेडी मैंने ये A cos थीटा ले लिया, मतलब हो गया उसके परपेंडिकुलर। तो फोर्स विल बी व्हाट, एब्जॉर्प्शन है तो क्या हो जाएगा, तो P by C, सो दैट इज I A cos थीटा by C। ये फोर्स किस पे हो गया, फोर्स ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम ऑन फोटोन। तो फोटोन पे क्या हो जाएगा, अपवर्ड मीन्स इट विल बी अपवर्ड। तो ये मैं लिखता हूं, इट इज अपवर्ड हो जाएगा। तो फोर्स ऑन सरफेस क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑन सरफेस विल बी बाय थर्ड लॉ इतना ही हो जाएगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो I A cos थीटा बाई C इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये मतलब अभी मैंने इसको ड्रॉ किया तो इस सरफेस पे फोर्स, अभी मैं यहाँ पे फोर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी पे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, लाइट फॉल ऐसे हो रहा है तो इस पे ये फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, दिस इज द फोर्स। देखो फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो वन कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर, दिस इज F cos theta and one will be parallel to this, that is F sin theta। देखो तो आ जाएगा। तो इस फोर्स का दो कॉम्पोनेंट, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड प्रेशर। ओके, वी हैव टू फाइंड द प्रेशर। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें उन्होंने क्वेश्चन में आई थिंक मेंशन नहीं किया है, वी हैव टू फाइंड रेडिएशन, रेडिएंट प्रेशर वी हैव टू फाइंड। देखो क्वेश्चन में आई थिंक मेंशन लिखा उनका, सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय बीम। हाँ, तो फोर्स तो इतना आ गया, ठीक है ना, फोर्स ऑन द सरफेस इज दिस मच। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन है तो अपना फोर्स इतना आ गया, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन सिर्फ यही है तो फोर्स उतना है, I A cos थीटा बाई C। इसके आगे है कि फाइंड द रेडिएशन प्रेशर, दैट वी हैव टू फाइंड। तो रेडिएशन प्रेशर निकालना है, द नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्स यहाँ पे आके रुक जा, अगर फोर्स है तो इतना आके रुक जा। अभी हमें फाइंड करना है रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर, तो रेडिएंट प्रेशर क्या हो जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन ना। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स
पैरेलल टू द सरफेस है उसका कोई प्रेशर नहीं आएगा, जो फोर्स परपेंडिकुलर उसका उसका तुमको क्या आएगा, उसका तुमको प्रेशर आएगा। प्रेशर इज ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस अभी ऐसा है उस पर ये फोर्स, दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू impart any kind of pressure. So this force is parallel to the surface, this is perpendicular. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो this force, तो ये force force perpendicular, again यहाँ पे लिख दो force perpendicular to surface by cross sectional area. तो क्या हो जाएगा, तो this is F cos theta by A. F is how much, so this is I into A cos square theta by A into C. A cancel here, तो I cos square theta by C. So this is the pressure, just see. Okay, this is first case. Now case 2, if, तो सेकेंड केस में भी वैसे ही अपने को प्रेशर और रेडिएशन, सॉरी फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर निकालना है, रिमेम्बर इट। तो यहाँ पे देखो, तो उस केस में भी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इफ R is 1, नाउ केस 2 लो, R is 1, सॉरी R is 1, नाउ केस 2 रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन से फिर से, तो पहले तो पावर इतना ही रहेगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, ओके। तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, ऐसे फॉल हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे टू टाइम्स ये आ जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। तो फोर्स ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम इन रिफ्लेक्शन, दैट वाज एब्जॉर्प्शन, तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा 2a। ये फोर्स किस पे होगा, फोटोन पे, तो ऑन द सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स एक्ट होगा, दिस इज लेट्स से F। इसका 2 कंपोनेंट, एक ये अगेन ड्यू टू, सो नेट फोर्स तो तुम्हारा ये हो गया 2a cos थीटा। सो अगर क्वेश्चन होगी फाइंड द फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो इतना हो गया, इंटेंसिटी दिया हुआ है तो इतना हो जाएगा, ओके। अगर लेट्स से इफ यहाँ पे इंटेंसिटी है, अगर पावर होता तो क्या हो जाता, तो पावर होता तो हम सिर्फ P लिखते हैं हम लोग, ये इंटेंसिटी दिया था इसलिए इंटेंसिटी को पावर में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे लिखा, आई थिंक दिख रहा है सबको, तो वो ध्यान देना। अगर सिर्फ पावर होता तो सिर्फ यहाँ पे P आई, सो IA cos थीटा वुड हैव बीन P ओनली। यहाँ पे इंटेंसिटी भी मैंने ले ली बिकॉज इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया का कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर एरिया का कंपोनेंट आएगा। इंटेंसिटी अगर पावर है देयर इज नो प्रॉब्लम, देन पावर है तो P by C, 2P by C इज द फोर्स। तो यहाँ पे देखो तो ये फोर्स हो जाता है। अभी रेडियंट प्रेशर निकालना है तो जो ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा उसके कारण आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखो ये। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नाउ थर्ड केस, व्हेन ऑल 3 आर देयर, means some radiation, some transmission, means some part is radiant, some part is transmit। तो जो थर्ड केस है दैट इज मेनली फॉर एडवांस, तो वो सबको एडवांस वालों को करना है। थर्ड केस A plus R is 1, तो केस थर्ड आई विल जस्ट लीव फॉर एडवांस। तो केस थर्ड दैट इज A plus R is 1, तो उस केस में क्या होगा सोच के करना, और BM शर्मा में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है दैट आई वांट टू डू। देखो पेज 361, पेज 361, क्वेश्चन नंबर 361, question number 7. Just see, a perfectly reflecting solid surface of radius r is kept in the path of parallel beam of light
large aperture. If the beam carries the intensity I, find the force exerted by beam on the sphere. तो देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फॉर एडवांस, दैट इज फॉर एडवांस, ठीक है। बाकी लोग भी देख सकते हो, बाकी स्टूडेंट भी देख सकते हो, लेकिन दिस इज मेनली फॉर एडवांस। तो जस्ट सी, सो क्वेश्चन नंबर 7 पहले खुद से ट्राई करना एडवांस वाले, देन यू गो विथ मी, ओके। क्वेश्चन इज गिवन, लेट्स से वहां पे फिगर उन्होंने दिया है वैसा, मैं फिगर में ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वैसा ये फिगर, सिर्फ डायरेक्शन मैंने चेंज किया। Okay, so light is, let's say, falling like this. So light is falling. So this is for advance. Question number 7. So light is falling like this. Okay. तुम उसने ऐसे दिया है, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग है द पाथ ऑफ पैरेलल बीम ऑफ, इफ द बीम कैरीज इंटेंसिटी, को यहाँ पे इंटेंसिटी आई दिया हुआ है, इंटेंसिटी आई है, तो फर्स्ट ऑफ यू चेक कि जो एरिया वेक्टर, जो लाइट फॉल हो रहा है, तो वो उसका जो एरिया वेक्टर है वो लाइट जो इंटेंसिटी है उसके पैरेलल है या क्या है, वो चेक करो एक बार, ठीक है। तो दैट यू हैव टू चेक कि मीन्स इंटेंसिटी से अपने को पावर निकालना होगा, पावर से अपने को फोर्स निकालना होगा, तो द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड एरिया वेक्टर वो एक दूसरे के पैरेलल है क्या, नहीं है तो अपने को कंपोनेंट लेना होगा, किसका, एरिया वेक्टर का। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एरिया के बाद भी फिर से कंपोनेंट लेना होता है, क्योंकि अपने को फाइंड करना है फोर्स एक्सर्टेड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बीम ऑन द स्फीयर। तो मुझे बीम ऑन द स्फीयर पे अपने को फोर्स एक्सर्ट करना है। तो कौन एक्सर्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ ये, तो लेट्स से, सो जस्ट सी, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर लाइट, ये लाइट मान लो यहाँ पे फॉल हो रहा है, इफ यू एक्सटेंड दिस लाइट, यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऐसे है और इस पॉइंट पे स्फीयर है, तो एरिया वेक्टर is going to be like this, area vector will be like this, okay। So okay, तो obviously अपने को, तो मैंने क्या किया, अभी देखो ये स्फीयर है, तो ऐसे सारे जो तुमको ये होंगे, लेट्स से ऐसे जो एक ऐसा मैंने ये दिस इज, और यहाँ पे हर एक का एंगल अलग अलग है, जो जो यहाँ पे हिट करेगा वो नॉर्मल होगा, जैसे तुम जाओगे दूर एंगल चेंज होता जाए। लेट्स से दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा, तो मैंने एक कोएक्सियल मैंने एक रिंग ले लिया यहाँ पे, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का एरिया, तो पावर क्या हो जाएगा, तो फोर्स, द पावर ऑफ लाइट ऑन दिस एरिया। सो इसका एरिया तुमको क्या आ जाएगा, सबको याद होगा, डी ए इज 2 पाई आर, ये दिस बिकम्स आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ओके। तो पावर ऑफ, सो पावर तुमको क्या हो जाएगा, तो P मैं लिखता हूँ, P इज इक्वल टू इंटेंसिटी I इज इक्वल टू P बाई, अभी ये जो एरिया है लेट्स से दिस इज DA, तो DA cos थीटा, सो पावर विल बिकम व्हाट, I इंटू DA cos थीटा, ओके। अभी ये पावर हो गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने हिट हो, बिकॉज अपने को फोर्स निकालना है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है,
तो रिफ्लेक्टिंग के केस में फोर्स कब एग्जर्ट होगा, जो रिफ्लेक्ट होगा उसके कारण। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ना डीए का मैंने कंपोनेंट लिया इधर, तो फिर यहाँ पे पावर ये हो गया। तो अगर मैंने फोर्स लिखा तो फिर ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग के केस में क्या होता है, द फोर्स ऑन द सरफेस इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये पावर आ गया, तो फोर्स अगेन, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स के लिए अपने को अभी पावर मतलब ये जो मैंने मतलब इसका कंपोनेंट लिया इधर, एरिया का मैंने कंपोनेंट लिया इधर, ये तुमको हो गया कंपोनेंट ऑफ एरिया, ये ऐसा ऐसा। अभी तो अभी तुम्हारा ये एरिया हो गया। अभी इसका तुम अभी इस पे ये जो लाइट फॉल रहा है ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा रिफ्लेक्ट, इसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी अपने को इसमें जो नंबर ऑफ मतलब ये जो इसका जो मतलब ये तुमको पावर हो गया, अभी पावर इस सरफेस के परपेंडिकुलर पावर क्या हो जाएगा, वही पावर रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे द एनर्जी पर सेकेंड, और लेट्स से इसको तुम तो फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो दैट इज P बाई सी, और इसका मैंने कंपोनेंट ऐसे लिया P बाई सी इंटू कॉस थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये तुमको फोर्स हो गया ऑन अ फोटोन, तो ऑन द सरफेस इतना ही होगा P बाई सी कॉस थीटा। अभी देखो ये फोर्स किधर, फोटोन पे एक्ट होगा ऊपर ऑन द सरफेस, दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो मैं ड्रॉ करता हूँ, इस सरफेस पे फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा होगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी, तो ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको हो गया फोर्स dF, ओके। ये तुमको पावर ये तुमको हो जाएगा dP, लिखो इसको बिकॉज स्मॉल एरिया पे लिख ले रहे हैं हम लोग, तो dF हो गया। अभी dF का देखो दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा और एक ऐसा, तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ से भी ये फोर्स आ जाएगा dF, इसका एक कंपोनेंट ऐसा और एक ऐसा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये ऐड होगा। तो फिर से ये तुमको हो गया इट इज योर dF, तो dF का फिर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो अपना फोर्स क्या हो गया, dF cos थीटा, दिस इज द F हियर, ये तुमको हो गया dF परपेंडिकुलर, so this is your dF perpendicular। so just see यहाँ पे dF तुम्हारा हो गया dP by C cos थीटा, ओके, into cos थीटा, ठीक है। अभी dP by C का वैल्यू तुम मतलब dP का तुम वैल्यू यहाँ से रख दो, तो I into dA into cos थीटा, तो cos Q थीटा, जस्ट dF परपेंडिकुलर, ठीक है। एरिया का वेक्टर एरिया कितना हो गया, तो I इंटू 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा कॉस क्यू थीटा। ये dP का वैल्यू तुमने रखा, dP इज I dA cos, तो ये टोटल हो जाएगा cos क्यू थीटा, तो cos क्यू थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करो तो F परपेंडिकुलर तुमको आ जाएगा, दैट इज I अगेन बाई C तो रहेगा ही, I बाई C इंटू पाई आर स्क्वायर, जस्ट सी I बाई C इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई बीम ऑन द स्फीयर। जो इस पे जो अगेन जो फोर्स का जो रिफ्लेक्शन है, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन जो तुम्हारा लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है उसके कारण कोई फोर्स नहीं आएगा। आई थिंक मैंने लास्ट में वो एक आई थिंक एक पॉइंट शायद मैंने ये कर दिया, देख लेना।
कि क्योंकि जो फोटोन इस पे ऐसे फॉल होगा, अगेन मैं अलग से मैं ड्रॉ करता हूं, तो चेंज इन मोमेंटम के कारण ही फोर्स आएगा। तो जो फोटोन, ये फोटोन ऐसे फॉल हो रहा है, तो जो फोटोन ऐसे फॉल होगा और जो ऐसे फॉल होगा, इसके लिए तो कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं है, सिर्फ इसके लिए, तो इसके कारण फोर्स आएगा। तो फिर आई थिंक देखो मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें मैंने जो फर्स्ट केस जो मैंने लिया था कि द लाइट वाज फॉलिंग, उस पर अगर फोर्स निकालना है तो यहाँ पे वो एक आई थिंक रॉन्ग कर दिया मैंने। ये जो लाइट फॉल हो रहा है ऐसा, तो हम लोगों ने लिया था क्या, दिस वाज मेकिंग एंगल थीटा, ये अपना था एरिया। तो ये देखो ये तुमको हो गया डी ए कॉस थीटा। तो यहां से तुमको, तो ए कॉस थीटा यहाँ पे, बिकॉज सबका वही है, एरिया वही है यहाँ पे सबका, तो यहाँ पे पावर वाज आई ए कॉस थीटा। तो देखो ये जो लाइट ऐसे फॉल हो रहा है, मतलब पावर मतलब क्योंकि फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, तो जो फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, तो फोटॉन्स जो फॉल होंगे उसके लिए चेंज इन मोमेंटम एक तो ऐसे आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, और एक बिकॉज जो वेलोसिटी है, जो मोमेंटम ऐसे है, उसका एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा। इसके कारण कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं, इसके कारण चेंज इन मोमेंटम होगा, है ना, जो रिफ्लेक्शन का किया था हम लोगों ने, तो इसके कारण कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं। ओके, इसके कारण चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इसके कारण कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं, इसके कारण चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो फिर से यहाँ पे हम लोगों ने किया था क्या कि दिस, सो P बाई सी, इसीलिए हम लोगों ने लिखा था ये। तो इसके ये जो फोर्स है ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और उसी का उन्होंने P निकाला था। तो एक बार वो देख लेना, ये समझ रहा है सबको मैं जो बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं कर लेता हूँ क्या। जो एब्जॉर्ब होगा तब तो सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस केस में नेट फोर्स वही रहेगा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट के केस में जो ये जो कंपोनेंट आया था अपना 2 आई ए कॉस थीटा बाई सी, सो दिस इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड, तो यही फोर्स इस पे डाउनवर्ड एक्ट होगा, दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज जो कंपोनेंट ये होगा उसके लिए कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, बिकॉज वो तो मूव है। तो यहाँ पे वही है, यहाँ भी वही है कि जो लाइट ऐसे फॉल हो रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, एक लाइक दिस, तो दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड, इसके कारण इस पे फोर्स आएगा। जो ऐसा है वो तो विदाउट चेंज इन मोमेंटम ऐसे ही वो निकल जाएगा, तो उसके कारण कोई फोर्स नहीं आएगा, उसके कारण कोई प्रेशर नहीं आएगा। ओके, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक मैं ले ही लेता हूँ, बिकॉज दैट विल बी क्लियर। देखो जो अपना सेकेंड केस में ले रहा हूँ, सेकेंड केस दिस इज थीटा। तो क्या करना है अपने को, पहले तो ये एरिया वेक्टर ऐसे था, इसका कंपोनेंट लिया मैंने ऐसे, सो दैट इज ए कॉस थीटा। सो पावर क्या हो गया, पावर इज आई ए कॉस थीटा, ये हो गया पावर। नाउ द, अभी पावर ये है, तो अभी जो, तो पावर ये है, तो चेंज इन मोमेंटम तुमको, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स के लिए हम लोगों ने लिखा P बाई सी, सो दैट इज 2A। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसे एक्चुअली लिखना सही नहीं है, कि जो मैंने लिखा था ना, द फोर्स वाज P बाई सी, सो दैट इज यहाँ पे 2P बाई सी, तो 2IA cos थीटा बाई सी, और फिर उसका हम लोगों ने कंपोनेंट लिया था, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा, तो इसके लिए उन्होंने रेडियंट प्रेशर फाइंड किया, तो वो लिखना गलत होगा, बिकॉज इसमें क्या आ जाएगा, आई ए कॉस थीटा। तो अभी देखो ये ऐसे फॉल हो रहा है, तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो हर एक का है, हर एक का मोमेंटम ऐसा है, जो लाइट है उसका एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, दैट इज h बाई लैम्डा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा h बाई लैम्डा साइन थीटा। दिस विल रिमेन अनचेंज्ड,
h बाई लैम्डा साइन, जब वहाँ पे उन्होंने किया भी है, वैसे आंसर आ गया था, लेकिन वो करना लॉजिकली रॉन्ग है। तो h बाई लैम्डा साइन थीटा में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा। तो कितना आएगा 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा, बिकॉज रिफ्लेक्शन है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो दिस इनटू नंबर ऑफ फोटोन, तुमको वहां पे p लैम्डा बाई एच सी, तो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कैंसिल, एच एस कैंसिल, सो 2p cos थीटा बाई सी एंड 2p इज दिस, तो 2ia cos स्क्वायर थीटा बाई सी। ठीक है, बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ड्यू टू रिफ्लेक्शंस में कोई मोमेंटम चेंज नहीं, तो कोई फोर्स नहीं, बिकॉज मोमेंटम चेंज होगा तभी फोर्स आएगा। ड्यू टू जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका चेंज इन मोमेंटम होगा एंड दैट इज गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू द फोर्स, तो ये फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स इस केस में, नेट फोर्स विल बी दिस ओनली 2ia cos स्क्वायर थीटा बाई सी, दैट इज नेट फोर्स। मैंने वहां पे बोल दिया एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत नहीं, एब्जॉर्प्शन में दैट इज करेक्ट कि द नेट फोर्स इज दैट मच ओनली। ओके, व्हेन वी हैव एब्जॉर्प्शन द नेट फोर्स इज दैट मच ओनली। लेकिन जब रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में सिर्फ जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा होगा। तो 2ia cos स्क्वायर थीटा बाई सी इज द फोर्स एंड ये फोर्स क्या होगा, वर्टिकली डाउन होगा, तो इट इज डाउनवर्ड। तो ऑन द मतलब फोटोन पे अपवर्ड, ऑन दिस ऑन सरफेस इट विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो ध्यान देना है, बिकॉज वो शायद मैंने रॉन्ग कर, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि नेट फोर्स इज दिस, नो, तो वो नहीं होगा, आंसर आ जाएगा लेकिन लॉजिकली वो रॉन्ग होगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो ऐसे था वो उसके लिए कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं, जो परपेंडिकुलर उसके लिए चेंज इन मोमेंटम, वही मैंने लिया था, उसी से मुझे ध्यान में आया, क्या रे वहां पे मैंने शायद ऐसा बोल दिया था, वो देख लेना, आंसर तो आ जाता है। लेकिन नेट फोर्स, अगर क्वेश्चन की नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तुमको यही रहेगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन। नेट फोर्स विल नॉट बी 2p cos थीटा बाई, net force won't be p by, means net force won't be 2p by c, that is 2ia cos theta by, ये रॉन्ग होगा। नेट फोर्स ये होगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्जॉर्प्शन में तो ये कंपोनेंट भी एब्जॉर्ब हो गया, ये जो कंपोनेंट है वो भी एब्जॉर्ब हो गया, ये भी कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्प्शन में वही रहेगा नेट फोर्स। लेकिन रिफ्लेक्शन में सिर्फ ये नेट फोर्स नहीं होगा। मैंने उसमें कहा था कि नेट फोर्स इज 2p बाई सी, सो दैट इज 2ia cos थीटा बाई सी, तो ये रॉन्ग होगा। नेट फोर्स तुमको ये रहेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही नेट फोर्स रहेगा इन द रिफ्लेक्शन। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द कंपोनेंट पैरेलल टू द फोटोन, जो फोटोन हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा सरफेस के, उसके कारण कोई फोर्स नहीं, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, उससे कुछ चेंज नहीं हुआ। जो थर्ड केस है जिसमें रिफ्लेक्शन, वो सबको देखना है, सबको नहीं, मीन्स एडवांस वालों को, और फिर उस पर डिस्कस करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स आवर दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। उसके पहले यू आर नाउ इन अ पोजिशन टू सॉल्व क्वेश्चंस। सॉल्व में देखो पेज 359 पे 1 to 7 तक तुम सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे 1 to 12 तक you can solve in the solved example in the exercise. So this completes our this topic, and thanks.